Hello everyone. Hope you all are doing good. Welcome to our channel Success Eduday. Don't forget like, share and subscribe to our channel. Now let's continue our chapter number 2 of a parallel line. Before moving ahead, let's recall what we have learned in previous lecture number 1. So in previous lectures we have learned about what is meant by parallel line, corresponding angle pairs, properties of that pairs of interior angles and all that properties. We have learned this portion in standard 8 and I have recall all these topics in a last lecture, lecture number 1. Now then after we have discussed about the exterior angle theorem and corresponding angle theorem, interior angle theorem, and then corresponding alternate. All these theorems we have discussed in lecture number 1. This, if you do not go through it, don't worry, link are present in the description box. And practice set 2.1, we have solved problem number 1 and problem number 2 and 3 and 4 is for your homework. So this is a simple one problems. I hope you have already solved these problems. If you are facing any problem, please mention your doubts in a comment section. These are the now in today's lecture we are learning about the use of a properties of a parallel lines and a test of a parallel line, that is test for a parallel line. So we are learning these topics in today's lectures. So interior angle test and then exterior angle test or alternate angle test and corresponding angle test. These are the points we are learning in today's session. Now let's see one by one. First of all, we are starting with use of a properties of a parallel lines. So now let's prove properties of a triangles using a properties of a angles made by the transversal of a parallel line. So now you have to prove that sum of a measures of all angles of a triangle is 180 degree. This is a very much important theorem from your exam point of view. Please be patient and listen carefully. So now आपको दिया गया है एक ट्रायंगल दिया हुआ है, दैट इज ट्रायंगल ABC इज अ गिवन. एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल रहेगा. सो नाउ प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री. मीन्स तीनों की तीनों वर्टेक्स एंगल की सम कितनी बतानी है आपको, 180 डिग्री. सो आई सिंपली सेइंग दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री बताना है. सो उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्शन, दैट इज यू हैव टू ड्रॉ द पैरेलल लाइन टू एनी ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स. कोई भी साइड्स को आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग एंगल्स की वैल्यू चेंज होंगी ओनली. सो अभी ये मैंने यहाँ पे ए को पैरेलल लाइन लिया हुआ है. सो यू डू नॉट नेसेसरी टू टेक अ फॉर पैरेलल लाइन फॉर ओनली ए. यू कैन टेक एनी साइड्स, जस्ट वैल्यू चेंज होंगे एंगल्स की आपके अकॉर्डिंग. सो नाउ लेट्स सी द प्रूफ ऑफ दिस एंगल्स. सो I have draw one parallel line parallel to the BC. So line PQ is parallel to line BC. So मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया जो मेरी PQ है, that is parallel to line BC. And now AB is my transversal. सबसे पहले मैं क्या करूँ, A side मेरी this one side. So मेरी A जो side है, this will be my transversal and these are the two parallel lines. So इनके बीच में अगर मैं बात करूँ, so if I draw this parallel line and this will be and this will be. So now if I take this side, so angle ABC, angle ABC, so this one my angle ABC is parallel to or a concurrent to PAB. So मेरा A angle इसके साथ concurrent रहेगा और अब सेम रहेगा, दैट इज अल्टरनेट एंगल थ्योरम के अनुसार. नाउ देन एंगल PQ पैरेलल टू BC. नाउ सेगमेंट AC इज अ ट्रांसवर्सल. नाउ माय सेगमेंट AC इज अ ट्रांसवर्सल. सो नाउ एंगल ACB, ये मेरा यहाँ पे A है, ACB, ये मेरा ACB इक्वल है किसके, QAC के. ये मेरा Q और AC, ये मेरा QAC. सो इन दोनों के एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स सेम थे.
So from 1 and 2 we can say that angle ABC plus angle ACB equal to angle PAB equal to angle QAC. So ये हमें 3 इक्वेशंस मिल चुके हैं. एडिंग मैं ऐड कर रहा हूँ एंगल BAC इन बोथ द साइड्स, मीन दोनों साइड में एंगल BAC ऐड कर रहा हूँ. सो आई एम एडिंग एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, एंगल PAB प्लस एंगल QAC प्लस एंगल BAC. सो अगर मैं देखा जाऊँ तो यहाँ पे मेरा एंगल PAB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल QAC. सो मैं PAC प्लस QAC, सो मैं एंगल PAB प्लस QAC, this one is QAC and PAB and BAC. सो ये मेरा BAC. सो ये रहेगा. सो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, एंगल PAC, ये मेरा PAC, ये मेरा PAC, ये मेरा इतना एंगल रहेगा. वेट मिनट, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ. ये मेरा दिस वन इज माय PAC प्लस एंगल QAC, दिस वन मायने सेकंड. सो एक एंगल A रहेगा और एक एंगल A रहेगा. सो दिस वन ना. इसके बाद आता है, सो इन दोनों की एडिशन कितनी रहेगी, 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ दिस एंगल्स आर 180 डिग्री लीनियर पेयर. दैट इज लीनियर पेयर. कैसे लीनियर पेयर है, ये मेरा एक एंगल A था और दूसरा एंगल A था मेरा. सो इन दोनों की एडिशन कितनी रहती है, 180 डिग्री. सो दैट इज वाई नाउ वी कैन से दैट एंगल sum of a measures of all angles of a triangles is 180 degree, because angle ABC plus angle ACB plus angle BAC equal to कितना मिला हमें, 180 degree. Now in this problem, or we have just simply draw one parallel line to the any of the sides and taking a interior angle, that is alternate angle properties, then we have solved this problem with the help of, if you know the alternate angle property, then you can easily solve these problems. Now let's see test for parallel lines. So whether given two lines are parallel or not can be decided by examining the angles. So if the interior angles on the same side of a transversal are supplementary, then lines are parallel. मीन्स इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पर के जो एंगल्स रहेंगे ये दोनों अगर सेम रहेंगे देन इट विल बी अ पैरेलल लाइन, 180 डिग्री रहेंगे. दैट इज अ सिंपल वन. सो यू कैन इजीली सॉल्व दिस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंटीरियर एंगल थ्योरम, सॉरी इंटीरियर एंगल टेस्ट के साथ स्टार्ट करते हैं. सो इंटीरियर एंगल formed by the transversals of two distinct lines are a supplementary, then the two parallel lines, then two lines are a parallel, then two lines are a parallel. अगर दोनों इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के डिस्टिंक्ट है, if interior angles formed by the transversals of two distinct lines, मीन्स दो अलग लाइन ने इंटीरियर एंगल्स फॉर्म करे, वो दोनों की एडिशन सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री होगी, देन इट इज कॉल्ड एज अ पैरेलल लाइंस. देन वो दोनों लाइंस कैसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी. नाउ लेट्स सी लाइन XY इज अ ट्रांसवर्सल लाइन टू द AB एंड CD. दोनों लाइंस को क्या रहेगी, ट्रांसवर्सल. सो नाउ प्रूव AB पैरेलल टू CD प्रूव करना है. नाउ लेट्स सी क्या करेंगे इसमें, सिंपल वन है, ज़्यादा कुछ नहीं है. लेट्स सपोज दैट अ स्टेटमेंट टू बी प्रूव इज रॉन्ग. So that's we have assumed that angle line AB and line CD is not parallel. हमने assume किया line AB CD को parallel नहीं है. So you are taking intersecting line and at a point T, हमने मान के चले दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस होती है और टेक पॉइंट एट अ पॉइंट T पे. सो वी हैव फॉर्म अ ट्रायंगल, एंगल PQT इज फॉर्म. ये हमें दिख रहा है PQT, ये हमें दिख रहा है, छोटा सा ट्रायंगल हमें फॉर्म हुआ है वो दिख रहा है. सो उसकी एडिशन कितनी रहेंगी हमारी, 180 डिग्री रहेगी, बिकॉज ऑफ सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स. सो वी कैन से दैट एंगल TPQ प्लस PQT इज 180 डिग्री इज गिवन. सो हमें क्या गिवन है, TPQ. सो मीन्स ये मेरा T और ये PQ. सो मेरा TPQ
और मेरा पी क्यू टी, ये मेरा पी क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री इज गिवन। पी क्यू टी, ये मेरा पी क्यू टी और ये पी क्यू टी और टी पी क्यू is 180 degree, yeah, is given. So the sum of angles of a two angles of a triangle is 180 degree, but sum of a three angles of a triangle is 180 degree, but angle PTQ equal to 0 degree. Therefore PTQ equal to line PT and line QT. Line means AB and line CD are not distinct lines, but we have given that line AB and line CD are distinct lines. So therefore we have arrived at contradiction. Our assumption is wrong. हमारा assumption wrong हुआ because उन दोनों angles की addition कितनी हो रही है 180 degree. So we can say that line AB is and line CD are parallel. हमारा assumption क्या हुआ था, contradictory हो रहा था, इसीलिए वो दोनों लाइंस क्या रहेगी, एक दूसरे को पैरेलल रहेंगी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द इंटीरियर एंगल टेस्ट ऑफ अ पैरेलल लाइन. नाउ फॉर अल्टरनेट एंगल, नाउ इफ द पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल्स ऑफ अ टू पैरेलल लाइन, two lines is a concurrent, then two lines are a parallel. If a pair of alternate angles formed by the transversals of a two lines is concurrent, then two lines are parallel. मीन्स आपको क्या करना है, अभी अल्टरनेट एंगल के अनुसार ये आपका ए और ये मेरा बी, आपका ए और बी ये दोनों दिए हुए हैं, दोनों अल्टरनेट रहेंगे, तभी ये दोनों लाइन क्या रहेगी, पैरेलल रहेंगी. ये प्रूव करवाना है. सो हम क्या करेंगे, लाइन एल एंड एम दोनों पैरेलल बताना है. सो उसके लिए क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना मिलता है हमें पता है, बिकॉज अल्टरनेट एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए मेरा ए प्लस एंगल सी कितना रहेगा 180 डिग्री रहेगा, बिकॉज दिस इज अ लीनियर एंगल पेयर. सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी रहेगा. सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी रहेगा इज गिवन, बिकॉज अल्टरनेट एंगल दिए हुआ है, अल्टरनेट एंगल दिए हुआ है. सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमारा गिवन है. सो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना है हमारा 180 डिग्री. सो बी प्लस सी भी 180 डिग्री होगा. बट एंगल बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स. बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल बी एंड एंगल सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ सेम साइड, एक दूसरे के साइड में, यानी दोनों साइड्स के अंदर में है, दोनों लाइंस के अंदर में. देन वी कैन से दैट लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ अल्टरनेट एंगल टेस्ट, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल से प्रूव किया हमने. सो दैट इज कॉल्ड एज अ अल्टरनेट एंगल टेस्ट. बट लाइन एम एंड लाइन एल एम लाइन एन is parallel to line M by interior angle test, because ये दोनों की एडिशन कितना रहना है 180 डिग्री इंटीरियर का है ना, इसीलिए. सो आई होप आपको समझ में आ चुका है. इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन प्लीज मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन. सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व और ट्राई yourself for a corresponding angle test. Here we are using only the corresponding angle pairs and a linear angle pair theorem. If you try to yourself, if you are facing any problem, please mention in a comment section. Now, don't forget like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching Success Edutech.